Today I am going to start with important topic, that is dual nature of radiation. Radiation. In very easy language we can say that light as well as electron behaves like radiation as well as wave. What is the concept behind this? In lower class you have studied that light is a radiation, and 3 cardboard experiment of Newton showed that the light travels in the straight line. That was the corpuscle theorem and so many other theorems. If it is light, is a radiation, then the question arises, in a room if bulb is lightened, lamp is lightened, why at the bottom there is much illumination and whole room is illuminated? What is the reason? Actually, you can see this. Here it is lamp and much illumination is there where the bulb is there. But in the surrounding also, see here, lamp side is this, and that's why the light is falling on this and it illuminated, and the whole room is illuminated due to the wave nature. First one is called as scintillation effect. This is the main thing which verifies that light travels in the straight line, glowing at a point. A point indicates that light travels in the straight line. This is feature of radiation. And when radiation is there, then the energy will be equal to mc square, where m is mass and c equal to velocity of light, and E is energy evolved. यानी किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है लाइटिंग सोर्स को. अब ये क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन से द वेव. For wave there are so many facts are there. Actually, suppose this is sodium light and here hardboard is there. It have one pore and here another slide is there which contains 2 pores. It means that will be the 2 source of light. And what happens? 2 types of wave are formed. One have the less amplitude and other have the higher amplitude. Less amplitude, this is the characteristics of wave. As you see when stone is thrown in the water tank, and here you are seeing the same pattern. जहाँ पर ये स्फीयरिकल वेव जो बन रही हैं, 2 सोर्स बन गए,
यानी 1 इज S1 एंड 1 इज S2। भाई जब एक लाइट थी स्ट्रेट लाइन में चलती तो यहाँ तक तो सही बात समझ में आती, लेकिन यहाँ से जब बाइफरकेट हो गई तो स्ट्रेट कहाँ रह गई। और फिर दो तरीके की वेव बनी, एक कंस्ट्रक्टिव जिसमें फेज डिफरेंस 0 हो, और एक जिसमें कि फेज डिफरेंस 180 हो। यानी दो सोर्स हैं, एक किसी पार्टिकल पर लगा रहे हैं एनर्जी एक ही दिशा में तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और एक ही पार्टिकल पर जब दो फोर्सेस लगे अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। और इस तरीके से डॉट और स्ट्रेट लाइन से मैंने शो किया। और यहाँ अगर पर्दा लगा दें तो इस पर डार्क वाइट इस तरीके से फ्रिंजेज बन जाती हैं, इमेज बन जाती है स्क्रीन पर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव को काटती चली आएंगी वो तो वाइट बनाएंगी, और जो ऐसा रहा कि पार्टिकल पर दो फोर्सेज लगी एक इधर और एक इधर तो ये कम डिस्प्लेसमेंट रहा। यदि ये डार्क है फिर लाइट फिर डार्क, इस तरीके से फिर लाइट में क्या होता है कि दोनों तरफ दो फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में लगे। तो इस ग्राउंड पर ये शो हो रहा है कि लाइट वेव है, जिसको हम कहते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी एंड वेव कॉन्सेप्ट। एंड मैक्सिमम depends upon the polarization, interference, reflection, rectilinear propagation. These are few facts by which we can say that light is not as radiation, it is just like wave. And what I have demonstrated by the circular wave, that is the interference. It means if two forces are occurring on a particle in the same phase difference, it means the angle is 0, then displacement will be maximum, and if the angle is 180 then the displacement will be minimum, as I have shown here. And on screen we are getting the different patches. One is dark light. What this indicates that light is just like the wave. अगर स्ट्रेट लाइन में थी तो ये तमाम पैचेज बनने की ज़रूरत कहाँ से आई? तो अब उसके बाद में मैं बताने जा रहा हूँ, इसी को आधार मानकर डी ब्रॉगली ने डिस्कवरी की। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट था, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला। डी ब्रॉगली इक्वेशन, एक्चुअली इन्होंने ये कहा कि अगर लाइट रेडिएशन है तो उसकी एनर्जी E1 है, और अगर लाइट वेव है तो उसकी एनर्जी E2 है। एंड अगर हम E2 मानते हैं वेव, तो वेव की एनर्जी हमारी आएगी क्या? h न्यू। कॉन्सेप्ट समझिए, h प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c अपॉन लेमडा। c माने वेलोसिटी, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एक ही जैसे लगते हैं। ये है वेवलेंथ। अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें तो यही E2 इक्वल टू हो जाएगा hc अपॉन लेमडा। कब? जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि दैट इज जस्ट लाइक वेव। ओके, और जब हम रेडिएशन मान रहे हैं तो E इक्वल टू मास होगा जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, mc²। और E1 ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि E1 विल बी ऑलवेज E2। E1
इक्वल टू E2, क्योंकि कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन गायब नहीं की जा सकती. E1 इक्वल टू mc स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू hc अपॉन लेमडा. h इज प्लैंक कांस्टेंट, एवरीबडी नो 6.6 × 10⁻34. ये स्क्वायर इसके कट गए तो लेमडा इक्वल टू आ गया किसके, h अपॉन mc. mc क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी. उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम. इट मीन्स वी कैन से इन अदर वर्ड द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू लेमडा या वेवलेंथ. वास्तव में कई न्यूमेरिकल बन सकते हैं. यहाँ पर 4 चीज़ दी है, 3 चीज़ें मालूम हो, चौथी निकाल सकते हैं. यहाँ पर h मालूम तो है ही, वो तो h की वैल्यू, तो रो की वैल्यू हम निकाल रो बस केवल दिया हो तब भी वेवलेंथ निकल आएगा. इसलिए डी ब्रॉगली इम्पॉर्टेंट रहे. अब आ जाइए आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आइंस्टीन थ्योरी पर है, जिसको अब मैं बताने जा रहा हूँ. ये भी सब प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और लाइट या वेव उसका नेचर क्या होता है. ये कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत गौर से समझिएगा. फोटो सेल जितनी बनाई गई, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ये जो सोलर सेल हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम कर रहे हैं. आज जो कौन सी लाइट है, LCD बल्ब आ रहे हैं, वो भी क्या है, यही है. और पावर कितना कम है और उससे ज़्यादा है. ये एक्चुअली इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाए या कोई चीज़, ये अपने आप चलता रहेगा. और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, जैसे ये प्लेट ली और यहाँ पर कैथोड रहा और ये एनोड है. अगर बस ये नहीं है कि ये किसी सर्किट से जुड़ा है ना, सर्किट से नहीं जुड़ा है. ये कैसे माइनस और प्लस होगा, इसका रीज़न बता रहा हूँ कि जब इस पर लाइट पड़ेगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकालता है, तो ये ई बदल जाएगी किसमें, आयनाइजेशन एनर्जी में. और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे. और बाहर आ गए तो क्या होगा, वो एस्केप कर गए, यानी वो सेल ऑर्बिट में रह नहीं गए तो वो बाहर आ ही जाएंगे. और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं. इसी तरीके से ये कितनी एनर्जी आएगी, क्योंकि ये फोटॉन बंडल के रूप में आती है. और जहाँ फोटॉन बंडल की बात कर रहा हूँ वहाँ एनर्जी इक्वल टू होती है hc अपॉन लेमडा. h प्लैंक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट. सोलर एनर्जी पड़ रही है या हम आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, तो किस रंग की लाइट पड़ रही है उसकी एनर्जी अलग अलग होगी. अब यही इलेक्ट्रॉन ये सीधे आएंगे कहाँ पर, माइनस प्लेट पर, माइनस से प्लस की ओर. क्यों, इट विल अट्रैक्ट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल अकर and ultimately the bulb will start glowing. This is the concept. But here you are seeing one fact that is not difficult. Reaching of this electron to this point, that is equal to E equal to half mv square. क्योंकि जब कोई चीज़ चल रही तो उसकी एनर्जी क्या हुई, हाफ mv स्क्वायर हुई. इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगी वो इक्वल टू h न्यू मान लिया गया, क्योंकि जो न्यू नॉट, क्यों, क्योंकि जो पढ़ रही है h न्यू सूरज से आकर के वो एनर्जी कुछ और होगी, यानी वो टोटल एनर्जी है. जैसे 10 रुपये मेरे पास हैं, या मान लो वो एनर्जी आ रही 10 कैलोरी
लेकर के आ रही सूरज की एनर्जी, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और 2 कैलोरी खर्च हो गए इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में कैथोड से, और 8 कैलोरी लग गए इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक पहुंचने में, तो होगा क्या? 2 पार्ट बन गए, यानी जो आयनाइजेशन के लिए थी एनर्जी वो अलग है, और जो उस पर गिर रही है वो अलग है। जो गिर रही है वो टोटल है, ये बट गई 2 हिस्से में, एक E1 और इसको हम E2 कह सकते हैं। इट मीन्स टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, एंड व्हाट विल बी दिस H nu naught, and this will be equal to half mv square, and this will be H nu. This is the equation of Einstein for photoelectric effect. It means all the devices which are made, automatic door, all these things, that is based on the photosynthesis. क्योंकि जब कोई बॉडी जो लाइट जलती है डोर के सामने, ऊपर सोलर टाइप का बल्ब लगा रहता है सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव, जब हम खड़े हो जाते हैं उसके सामने तो लाइट नहीं पड़ती, इसलिए दरवाज़ा खुल जाता है। क्यों? क्योंकि ना कोई प्लेट पॉजिटिव रह गई ना निगेटिव। लेकिन फिर जब जैसे हम निकल गए तो लाइट पड़ी तो एक दरवाज़ा पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, तो दे विल इजीली कंबाइन. दिस इज द कॉन्सेप्ट इन इजी वे आई एम टेलिंग टू यू.